یہ حکومت بلنڈر کرتی آ رہی ہے اور ان کی غلطیوں کی سزا پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے۔ ہم نے شروع میں بھی یہ کہا کہ ہم سیاستدانوں کو بیٹھ جانا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی جو اس حکومت کے سربراہ ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ایک دو مرتبہ ایسی میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف نے ان کو منانے کی بھی کوشش کی، وہ نہیں مانا، اور وہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی کشمیر کے سلسلے میں جو بہت اہم تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری میٹنگ ہوئی جس میں بھی وہ تشریف نہیں لائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں۔ دیکھیں، اگر کسی بھی پابندی تنظیم پہ لگائی جاتی ہے تو پارلیمنٹ موجود ہے، یہ چیز پارلیمنٹ میں لے آؤ اور متفقہ طور پہ اس پہ کوئی بات ہو۔ اب ان کی ایک دم پابندی ڈالنا، دوسری جماعتیں جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ سارے ملک میں پہیہ جام تھا، ہڑتال تھی۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملکی حالات میں لوگوں کی توجہ مہنگائی سے ہٹ جائے اور قتل و غارت کی طرف وہ چلے جائے۔ مہنگائی اتنی زوردار مہنگائی ہے جس کا تصور ہم نے کبھی بھی نہیں کیا تھا کہ کم عرصے کے اندر جو مہنگائی کی دواؤں کی قیمتیں ہیں وہ 500% بڑھ جائیں، گوشت کی قیمتیں 100% بڑھ جائیں، دودھ کی قیمتیں 40% بڑھ جائیں۔ تنخواہیں بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں 60 روپے سے 110 روپے ہو گئی۔ پیٹرول کی ٹیکس جو تھی ہمارے زمانے میں وہ تقریباً ٹوٹل ٹیکس، سیل ٹیکس ملا کے اور جو دوسری ٹیکسز ہیں ملا کے وہ 25% تھی۔ آج وہ تقریباً 65% سے 70% وہ ٹیکسز ہے۔ یہ اپنی ریکوری ناکامی کو پورا کرنے کے لیے ڈائریکٹ ٹیکسز لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں اور وہ لوگ بیچارے ان ٹیکسوں کے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں، تنخواہ نہیں بڑھتی۔ ہم نے مہنگائی کا ایک بہترین راستہ نکالا تھا، وہ تھی تنخواہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سبسڈی دینے میں کافی حد تک پرابلم آتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے جو آج کل چل رہی ہے۔ تو ہم نے تنخواہ کا اضافہ کیا 135%، 165% تنخواہ بڑھا کر ہم نے مہنگائی کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ عام آدمی کے پاس جا رہی تھی۔ اب یہ حکومت تنخواہیں بھی نہیں بڑھا رہی، تنخواہیں کم کر رہی ہے، مہنگائی کو روک نہیں سکتے، آپس کے اندر کے جھگڑے پورے نہیں ہو سکتے، گالم گلوچ پارلیمنٹ کے اندر چل رہی ہے جو کبھی ایک روایت نہیں تھی۔ تو یہ ایک مچھی مارکیٹ بن چکا ہے، ہر طرف سے الگ الگ آوازیں آ رہی ہے، ہر طرف جو سیلر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی چیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو قرضوں سے جان چھوٹ سکتی ہے، اب اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے تقریباً 11,000 ارب کا قرضہ لیا ہے اور دوسرے طرف کہتا ہے کہ میں نے 35,000 ارب اتار دیے۔ تو بھائی وہ اکاؤنٹس میں تو دیکھو کہ 35,000 ارب تو ادھر ہی پڑے ہیں، تم نے کون سے 35,000 ارب اتارے؟ وہ کون سے پیسے تھے؟ وہ کہاں سے آئے؟ کدھر سے آئے؟ ابھی تک آپ لون کے پیچھے IMF کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں، ابھی اور بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں، گیس مہنگی کرنے جا رہے ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں۔ تو لوگ کہاں جائیں گے؟ جب یہ چیزیں مہنگی ہوگی تو مارکیٹ کی چیزیں، سبزی بھی مہنگی ہوگی، گوشت بھی مہنگی ہوگا، دودھ بھی مہنگا ہوگا، چارہ بھی مہنگا ہوگا، جانور بھی مہنگا ہوگا، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ میں ایز اے پالیٹیشین، کیونکہ مجھے الحمدللہ 32 سال ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں نے ایسی خدا جانتا ہے بدترین پارلیمنٹ نہیں دیکھی۔ وہ جو عمران اپنے زمانے میں کہتا تھا خود کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ خود اس نے آ کے ثابت کر دیا ہے، خود اس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اس کے دور کی پارلیمنٹ پاکستان کے ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی جو
प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, उसमें भी इतनी बदतरीन पार्लियामेंट नहीं थी। कल शाह साहब जो स्पीच की है वज़ीर आज़म ने, उसने कहा कि अपने मुल्क का नुकसान करने के बजाय या फ्रांस के सफ़ीर निकालने से हमारा नुकसान होगा, इसके लिए ये जो रास्ता है जलाओ घेराव का, ये नहीं करना चाहिए। तो आप क्या इसमें हमें देखें, फ्रांस एक मुल्क है और एकदम ताल्लुकात ख़त्म करने, ये बात ठीक है, मगर उसके लिए एक रास्ता होता है, बात की जाती है, समझाया जाता है। एकदम आके अपने बाजू चढ़ा के बात करना ये इसका हल नहीं है। हर चीज़ का हल डायलॉग में मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। मैं हमेशा पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की है, और इन लोगों ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी की कभी बात नहीं की। ये पार्लियामेंट की डिग्रेड करने की बात करते हैं। एक बंदा उठ जाता है, सिर्फ कस्में खाते हैं, कुरान की कस्में खाते हैं, रसूलुल्लाह की कस्में खाते हैं और गालियां देते हैं। बस दो चीज़ें इनके पास है, पब्लिक को देने के लिए कुछ नहीं है, गरीबों को देने के कुछ नहीं है, न घर देने के लिए है, न इनको पास जॉब देने की बात है, कुछ नहीं है। हम जोश में आके बात नहीं करते, हम समझाने की बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसी बात करूं जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, आंख उठा के बात कर सके, आंखें नीचे न चली जाएं। तो वो मसला हल सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। अच्छा शाह साहब, तमाम पार्लियामेंट जिनके नेब में केसेस थे वो जमानत पे रिहा भी हो गए, 2 साल होने वाले हैं, आपकी जमानत नहीं हो रही, क्या वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इनके पास सारे पाकिस्तान के अंदर कोई मेरी ऐसी चीज़ नहीं मिली है, न प्लाट मिला है, न ज़मीनें मिली है, न कोई ऐसी चीज़ जो मैंने डिक्लेयर की हुई हो और वो उनको उसके अलावा कोई चीज़ मिली हो। बस है एक ज़माना, क्योंकि मैं हमेशा अमन परस्त हूँ, पार्लियामेंट को अहमियत देता हूँ, पार्लियामेंट की बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सियासतदान आपस में इत्तेहाद, इज्जत और एहतराम से चले, और वो सज़ा मुझे मिल रही है कि ये ऐसा बंदा है जो पार्लियामेंट को एक साथ रख सकता है। समात पे इम्कान है जमानत? देखिए, मैं तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता हूँ कि हर उम्मीद अल्लाह में होती है, मेरी किसी में और उम्मीद नहीं है, अल्लाह में उम्मीद है और अल्लाह की बनाई हुई अदालतों पे उम्मीद है। थैंक यू। शाह साहब, पहली बात तो ये कि आप जैसा आदमी जो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता रहा है, वो पार्लियामेंट से इतना मायूस आज हो गया है, इसकी क्या वजह है? सर, यही है कि मैंने यहाँ 7 पार्लियामेंटें देखी है, 7 पार्लियामेंटों में इसको सिर्फ मैंने देखें, जो पार्लियामेंट सिर्फ ऑर्डिनेंस पे चलेगी वो पार्लियामेंट नहीं चल सकती। हमने 135 जो कानून पास किए थे, 135, उसमें 5 ऐसे थे जो 2/3 मेजॉरिटी के थे। इससे अलावा 18वीं तरमीम जो मुत्तफ़िका तौर पे पास की, हर जमात उसमें थी। ये होती है पार्लियामेंट। हमने जो लोगों से वायदे किए, जो दावे से कहता हूँ, आए कोई ये कह दे, जो वायदे किए कि आपको रोज़गार देंगे, रोज़गार दिया, आपको नौकरियों से निकाला गया, नौकरियों में बहाल करेंगे, एक जनरल ने निकाला, एक डिक्टेटर ने निकाला, उनको बहाल किया। हमने 2 लाख लेडी हेल्थ वर्कर्स को 1,15,000 हमने उनको नौकरियों में रखा। हमने तनख्वाहों में 135% इजाफा किया। हमने NFC अवार्ड जो कोई 30 साल में नहीं कर सका वो किया। हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सूबों को दी, जिसका ये रोना पीट रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में, 18वीं तरमीम चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे 18वीं तरमीम सपोर्ट करती है। और ये सोचना भी गलत है कि 18वीं तरमीम में कराची या लाहौर या उनके हक चले, उनको हक मिले हैं। हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम नहीं था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड की। हमने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया। हमने दीवारों पे जो नारे लिखे जाते थे वो आज बिल्कुल नहीं है। कौन सी चीज़ है जो हमने आवाम से किया हुआ वायदा पूरा नहीं किया? मजदूरों को 12% इंडस्ट्रीज में शेयर दिया, मजदूरों को अपना हक दिया, लेबर लॉ अमेंड किए,
जो अभी तक ये नहीं कर सके। मैं चैलेंज से कहता हूँ, जहाँ उनको 50,000 मिलता था हमने 5 लाख दिया, जहाँ जहेज उनको मिलता था 50,000 रुपया एक बच्ची का, हमने कहा सारी बच्चियों का जहेज 1 लाख रुपया कम से कम। जो भी डिमांड थी, इंश्योरेंस थी, लेबर लॉस किए, लेबरों के लिए घर बनाए, आपके सामने 1100 फ्लैटें हमने बनाई हुई है, और हॉस्पिटल्स बनाए। क्या कुछ नहीं किया। मैं हर दम आपके सामने आता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ तो मेरे साथ बैठ जाओ, बताओ कि पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। साहब, राणा सनाउल्लाह का बयान आपने सुना होगा, धमकियां में उन्होंने ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि लाहौर में माफिया के खिलाफ आता है, इस वजह से सिंध पे तवज्जो नहीं दी, अब सिंध के ऊपर तवज्जो। ये पहले 162 अरब का ऐलान कर गए थे कराची में, जब एमक्यूएम के साथ इनका फड्डा पड़ गया एमक्यूएम को राजी करने के लिए। फिर उन लोगों ने 1100 अरब का ऐलान किया, फिर उसने अभी 425 या 446 अरब का ऐलान किया। वो पैसे 3 साल के अंदर कहाँ। ये तो एमक्यूएम जो एमक्यूएम को जब रूठती है तो उनको मनाने के लिए ऐलान करते हैं, और वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो कहाँ जाए, किधर जाए, मंजी कित्थे डावा, वो मसला है उनके लिए। इसलिए हम नाराज नहीं होते एमक्यूएम के बातों पे। एमक्यूएम बेचारी मजबूर है, कहाँ जाए, इसलिए उनके साथ इसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। शाह साहब, मंजूर मेतलो ने वादा किया था कि शाह साहब जब तक रिहाई नहीं होगी, जमानत नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूँगा। वडेरा मंजूर मेतलो सबर नहीं हो रहा। बात यह है कि मैंने उसे बुला के कहा कि देखो तुम शादी कर लो, क्योंकि वो शादी मैंने ही उसकी अरेंज की थी। शादी कर लो, तू शादी करेगा तो मेरी जमानत भी हो जाएगी और फिर मैं तेरे वली में आऊँगा। शाह साहब, आखिरी सवाल का ये शाह साहब ये बता दें आखिरी सवाल का कि पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और ख़ास तौर पर आप ये मसालिती किरदार और जो है बिठाने का और बातचीत का बड़ा करते रहे हैं माजी में ना, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, क्यों? देखें, खामोशी नहीं है, खामोशी भी रजामंदी होती है। हमने पीडीएम बनाया। देखें, मियाँ साहब चले गए मदद के साथ। मैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, मियाँ साहब यहाँ से चले गए बगैर बताए चले गए। इनके गवर्नर साहब 3 मरतबा जनरल साहब से मिले, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इन लोगों ने पंजाब के अंदर पीटीआई के साथ डायरेक्ट बैठ के तय किया, हमने कुछ नहीं किया। अगर कोई एक गलती समझ लें या हमारी हक समझ लें कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर 21 वोट हैं और नून लीग के 19 वोट हैं या 18 वोट हैं, हमारा हक बनता है, हम अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो उसमें क्या था। हमें अगर 26 वोट थे, 27 वहाँ जो मुस्लिम लीग का वोट था वो मिला, कौन सा हमने गुनाह किया। सीनियर मोस्ट आदमी जो पार्लियामेंट में था यूसुफ रजा, उसको किया, मगर उसके बावजूद भी मैं पुरुमीद हूँ, मुस्लिम लीग नून में भी पुरुमीद हूँ, वो सियासी बात करते हैं, और मैं मौलाना फजल रहमान और दूसरी जमातों में भी पुरुमीद हूँ कि आखिरकार हमें फिर बैठना पड़ेगा, बैठ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी दूरियां सबसे बड़ी सपोर्ट एक नाअहल हुकूमत को दे रही है जो आवाम को तबाह कर रही है, फिर इनडायरेक्ट वे में हम उसमें इन्वॉल्व होंगे इस तबाही में, अगर हमें फिर एक साथ नाराजगियां लेके चले। ऐसा मुमकिन है इस मुल्क के लिए आप हुकूमत से मिल जाएं, उससे बैठ जाएं, बात कर लें? भाई उस हुकूमत से बैठ जाए जो गरीबों का खून चूसती है, फिर हम भी उसका हिस्सेदार बन जाएं। क्या आप अगर कहते हैं तो हाजिर बैठ जाते हैं। गरीबों का मुल्क की मौजूदा हालात में टेबल पे तो बैठ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, उनको रास्ता दे सकते हैं, उनको कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हर चीज़ ले आओ, हम बैठ सकते हैं, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी हिस्सा तो नहीं बन सकते।